Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online and I am Dr. Asad, and with my speciality in the subject of biology I will be discussing a very important topic of chapter 5 from the book of biology of pre-medical first year students, that is bacteriophage. So we have covered the different components and composition and structure of the bacteriophage in our previous lecture, and this lecture we will cover how through different cycles this bacteriophage achieves its virulence or infectious abilities. So these are some of the important questions that you should be able to answer by the end of this lecture, starting off in the manner in which the bacteriophage attaches to the living cell, that is the bacterial cell, and then how the genome of the bacteriophage it enters the bacteria and how it divides within the bacterial cell, and what is the difference between the two cycles, the lytic and the lysogenic. Obviously हमने definition wise तो इनको cover किया है, but mechanism wise भी हम इसमें discuss करेंगे कि how these two life cycles can differ from each other. Starting off with the phases of the bacteriophage. So the first phase is the attachment, in which the bacteriophage attaches to the cell wall of the bacteria. तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, दैट हैज़ रिसेप्टर्स. उसके बाद जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है उसके हमने देखा था कि इट हैज़ 6 टेल लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट एट द एंड प्लेट. सो उसके जो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे बेसिकली अटैच ऑन टू द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है. द सेकेंड फेज इज द पेनिट्रेशन, जिसमें क्या होगा कि देयर आर सर्टन एंजाइम्स दैट आर रिलीज्ड थ्रू द एंड प्लेट एरिया, जो कि ऑब्वियसली क्या करेंगे, दे विल परफॉर्म दोज एंजाइम्स, दे आर बेसिकली लाइसोसोम्स, जो कि क्या करते हैं कि जो स्पेसिफिक बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन का जो रीजन है उसको डिज़ोल्व करेंगे, जिसकी वजह से एक ओपन स्पेस क्रिएट हो जाती है, और जिसके बाद जो है वो जीनोम नाउ इट कैन enter into the bacterial cell. So this period of penetration is known as the eclipse period. So we have a diagram of the bacteriophage attaching to the surface of the cell membrane of the bacteria over here. Sorry, the outermost layer is the cell wall. So we will try to understand over here that how the bacteria it attaches to the surface. So ये वाला portion हमने obviously पढ़ा था कि जो bacteriophage का है, this is the tail region that is attached to this surface membrane of the bacteria. ठीक है. तो ये this is the attachment or the adsorption के surface के ऊपर जो bacteriophage है ये आके attach होता है. हेड रीजन में हमने पढ़ा था कि दिस एरिया स्पेसिफिकली कंटेन्स द जीनोम, दैट इज आइदर द डीएनए और द आरएनए मॉलिक्यूल. तो अब क्या होगा कि एक दफ़ा जब ये बैक्टीरियोफेज मेम्ब्रेन सरफेस पे आके अटैच हो जाता है, तो थ्रू दिस एरिया इट इज़ गोइंग टू इंजेक्ट इट्स जीनोम इनटू द बैक्टीरियल सेल. उससे पहले क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है थ्रू लाइसोसोमल एक्टिविटी ये डिज़ोल्व हो जाता है, और फिर जीनोम ये बैक्टीरियोफेज इस तरह से इंजेक्ट करता है जैसे आप सिरिंज से कोई भी जो है वो वैक्सीन या कोई भी जो है वो ड्रग जो है उसको थ्रू इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर जब भी कोई आप इंजेक्शन जो है प्लेस करते हैं पेशेंट में, उसी तरह से बैक्टीरियोफेज जो है इन एन इंजेक्शनेबल फॉर्म अपने जीनोम को एंटर करवाता है इनटू द सेल ऑफ द बैक्टीरिया. After penetration, what is going to occur? There is going to be multiplication of the viral genome in the bacteria. Obviously जिस mechanism के through बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, अब होगा क्या कि जब एक दफ़ा वायरल जीनोम जो है इट इज़ गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल मशीनरी, so now it will continue to divide on itself to produce multiple
DNAs ऑफ द वायरस। उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि मैचुरेशन होगी, जिसमें ऑब्वियसली जो वायरल डीएनए है वो उसी तरह से असेंबल होगा जिस तरह के एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ हेड, टेल एंड द सेंट्रल लेयर ऑफ द प्रोटीन, जिसको कि हम शीथ कहते हैं। तो एक दफ़ा जीनोम जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो बाकी के स्ट्रक्चर जो हैं बैक्टीरियोफेज के, उसकी भी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, दैट इज़ द कैप्सिड एंड द हेड पोर्शन एंड रेस्ट ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में भी क्या हो रहा होता है कि जिस तरह से हमने पढ़ा था कि देयर इज़ इंजेक्शन ऑफ द वायरल डीएनए इनटू द बैक्टीरिया। तो जब एनिमल्स में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो कभी कभार पूरे का पूरा जो बैक्टीरियोफेज है वो ही एंटर हो जाता है इनटू द बैक्टीरियल सेल रादर देन ओनली द डीएनए। तो इस दोनों प्रोसेसेस को जब हमने समझना होता है तो वी हैव अ डायग्राम ओवर हियर दैट शोज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हाउ the bacteriophage is going to attach and insert its DNA into the host cell। ठीक है, उसके बाद जब ये DNA एक दफ़ा होस्ट में अपना इंसर्ट कर देगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि देयर इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर DNA फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या होगा, दिस इज़ हाउ द बैक्टीरियोफेज मैचुरेशन अकर्स, कि एक दफ़ा जब इनका डीएनए कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है तो उसी तरह से बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो इसका असेंबल हो जाएगा और डिफरेंट आप देख सकते हो कि बैक्टीरियोफेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर अराउंड अबाउट 25 to 30 मिनट्स ऑफ दिस इंजेक्शन ऑफ द डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल, ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड यू कैन सी कि सबसे पहले जो है डीएनए मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद ये जब पूरे का पूरा बैक्टीरियोफेज अंदर मैच्योर हो जाता है विद ऑल इट्स कैप्सिड्स एंड अदर कंपोनेंट्स, तो फिर ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरियोफेजेस के इस तरह से बैक्टीरियल सेल के अंदर मल्टीप्लाई हुए नज़र आएंगे। तो ये एक दफ़ा सारे के सारे जब असेंबली हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये जो जीनोम है अब यहाँ पे चला गया है इनटू द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो अब यहाँ पे पूरा एक बैक्टीरियोफेज जो है वो फॉर्म हो गया विद इट्स डीएनए एज वेल। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे कि ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसको बस्ट करके नाउ दीज इन्फेक्शियस बैक्टीरियोफेजेस दे विल कम आउट एंड नाउ दे आर रेडी टू बी कॉज देयर विरुलेंस एज वेल। ठीक है, सो दिस इज़ द विरुलेंस फेज, जिसमें कि ये जो बैक्टीरियोफेज हैं ये बैक्टीरिया से बाहर आके नाउ दिस इज़ one or the multiple bacteriophage that are now virulent and ready to cause infection in different cells as well। तो जब ये बस्ट करके जो है बैक्टीरियोफेजेस बाहर आते हैं तो इसको हम कहते हैं लिटिक साइकिल, एंड दिस इज़ अ लिटिक फेज बेसिकली ओवर हियर, क्योंकि थ्रू lysis of the bacterial cell wall now it has come out and it will cause its infection। So the final stage of the lytic cycle is the release and reinfection, जिसको अभी हमने आखिरी फेज में भी पढ़ा था कि जब बैक्टीरियोफेज कम्प्लीटली फॉर्म होके बैक्टीरिया की वॉल को बस्ट करता है तो नाउ इट हैज़ रिलीज्ड एंड इट इज़ रेडी टू री-इन्फेक्ट न्यू सेल्स एज वेल। So the modified lysosomes, they help in that burst or disruption or break of the cell wall of the bacteria। Second type से that is the lysogenic cycle, उस पे जाने से पहले this is the diagram once again over here that you can see in which once the bacteriophage they are completely assembled after maturation they burst out of the bacterial cell। So the bacteriophage, they were first discovered in somewhere in 1915 by the two scientists Stuart and Harrell, and they also identified bacteria by understanding the lytic cycle, and later on the lysogenic cycle was also identified, जिसमें कि क्या होता है कि ये जो बजाय के बैक्टीरिया जो है जो वायरल जीनोम है वो पूरी तरह से बैक्टीरिया का कंट्रोल ले ले, जो वायरल जीनोम है दैट अटैचेस itself to the bacterial genome and that final product is then known as the prophage।
ठीक है, तो अब जैसे जैसे बैक्टीरिया का सेल मल्टीप्लाई करेगा थ्रू बाइनरी फिशन, उसी तरह से क्या होगा कि जो वायरल जीनोम है वो भी उसके जो डॉटर सेल्स बनते हैं आफ्टर बाइनरी फिशन, उसमें भी वायरल जीनोम जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती चली जाती है। तो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होंगे 2, 4, 6 से 10, उन सब में ऑब्वियसली वो वायरल जीनोम की भी कॉपी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक और द टेम्परेट साइकिल और द लाइसोजेनिक फेज एज वेल। ये बैक्टीरिया बजाय के पूरी तरह से कंट्रोल ले ले, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वायरस पूरी तरह से जो है वो कंट्रोल ले बैक्टीरिया का, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम। इसकी अगर आपने एग्जांपल लेनी हो कि ये अटैचमेंट और ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है, सो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस एज द बैक्टीरियल सेल। उसके अलावा इसके अंदर आपको पता है कि सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड जीनोम हो सकता है। तो इसी जीनोम के साथ क्या होगा, एट अ सर्टेन पॉइंट जब वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया तो समवेयर इन दिस रीजन इट विल बिकम पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम। तो अब जब ये आगे बैक्टीरिया 2, 4, 6, 8, 10 में मल्टीपल कॉपीज़ अपनी प्रोड्यूस करेगा तो उन तमाम नए डॉटर सेल्स में वायरल जीनोम ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो जीनोम है वो वायरल जीनोम इट इनकॉर्पोरेट्स and continues to reproduce itself in the upcoming daughter cells as well. This is the end of our lecture regarding the bacteriophage and its life cycle. So do like our video if you have had a good understanding of this, and do share our videos as well with other students, so it can be helpful for them as well. And in the comment section do mention if you have any question regarding the bacteriophage and its life cycle. Do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive updated notification of our videos on regular basis. Thank you very much.